कि लॉर्ड डलहौजी, who is known for his annexationist annexationist policy. I hope I am writing it correctly. Clear? We have just seen that we have the maximum extension. Now, to what extent it was a personal choice made by him, reflecting his personal attitude, ambition, and anything that can be of the same nature or similar nature. Secondly, to what extent it was a result of circumstances, that is, the changing needs and requirements of the British rule. That is the issue. So, what do you think? We have maximum extension of territories during his time simply because he was an imperialist, he was ambitious, or he was more able than others, or it had become by this time a matter of choice on a larger scale, on a greater level, on a higher level, that the company itself or British imperialism itself now needed extension of the areas of direct control, and needs and requirements of the British imperialism could not have been fulfilled without extension of the areas of direct control. तो व्हाट डू यू थिंक, इसमें क्या लगता है आपको, कौन सा? सेकंड वाला लगता है, ठीक है ना? नो डाउट दैट ही वाज मैन ऑफ द आवर, ठीक है, ही वाज एम्बिशियस, ही वाज एबल, and of course he made personal choices in favor of mergers, in favor of annexations. There is no doubt about it. But we cannot delink whatever was being done by him from the changing circumstances of the British rule in India. Is that clear? तो फिर वो circumstances क्या थे? आपको नहीं लगता कि उससे सवाल पूछे जा सकते हैं? अगर कल को पूछे कि what were the causes behind his annexationist policies, तो उसके पीछे अगर आप सिर्फ डलहौजी की बात करें तो आप आधा अधूरा आंसर लिख रहे होंगे. वी नीड टू टॉक अबाउट चेंजिंग नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म इन इंडिया. तो मैं आपको बताता हूँ कि इस समय तक आते आते सेकेंड एंड थर्ड, अब देखो स्टेजेस ऑफ कॉलोनियलिज्म में भी आ जाएगा, थर्ड स्टेजेस ऑफ कॉलोनियलिज्म की शुरुआत हो गई थी, ठीक है? और इन दोनों स्टेजेस को हम लोग लिंक किसके साथ करते हैं? दी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड. और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का रिलेशन सिर्फ मटेरियल चेंजेस से नहीं है, बल्कि आइडियोलॉजिकल चेंजेस से भी है. इसलिए कि इंग्लैंड का सोशियो इकोनॉमिक एंड आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा था. हम कह सकते हैं कि ये इसलिए हुआ कि वी हैव न्यू सोशियो आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स with new interests. Why new interest? Because it was a new economy, it was a new society. ठीक है? If you remember, in ancient time we talked about the second urbanization, creating conditions for the rise of Buddhism and Jainism. So if England is changing, its economy is changing, its society is changing, we have appearance or emergence of new socio-ideological groups with their own interests, and we know that political system is also changing. England became the first nation
to have witnessed what we can say liberal transition or liberal transformations. So these voices now came to affect the British policies towards India. तो फिर ये कौन थे, कौन से ऐसे सोशियो आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स थे? तो इनको अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं तो इनमें से एक तो वो आते हैं हु वर फॉलोअर्स ऑफ एडम स्मिथ. दे आर नोन एज फ्री ट्रेडर्स, जो कि कंपनी और उसकी मोनोपोली के हमेशा से खिलाफ रहे थे. एंड फ्री ट्रेडर्स वर टॉकिंग अबाउट फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइज, इकोनॉमिक राइट्स. एडम स्मिथ आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड एज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री. सो एवरीथिंग दैट we have discussed there can be applied in their case. उसी तरह से दूसरे वो लोग थे जिनको कहा गया यूटिलिटेरियंस. वर्ल्ड हिस्ट्री में हम इसे भी पढ़ चुके हैं. ये यूटिलिटेरियंस कहलाते हैं बेंथमाइट्स भी, बिकॉज जेरेमी बेंथम वाज देयर लीडर, देयर फिलोसफर, देयर थिंकर. एंड यूटिलिटेरियंस वर ट्राइंग टू फाइंड सोल्यूशन to the problems of a society which was at crossroads. I think you are familiar with the idea of societies at crossroads. ये वो सिचुएशन होती है जब सोसाइटी इतनी तेज़ी से बदलती है कि हम ये तय नहीं कर पाते कि क्या गलत है क्या सही है. हम जब चॉइसेस अपने बनाते हैं तो हम मोरल कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हैं. उस समय हमें थिंकर्स और फिलोसफर्स की ज़रूरत होती है जो हमें बता सकें कि जो हम करने जा रहे हैं वो ठीक है और उसे वैसा ही किया जाना चाहिए. तो जेरेमी बेंथम ने सीधे कहा कि चाहे वो कोई आइडिया हो, इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी चीज़ हो, हम उसको तभी एक्सेप्ट करेंगे जब उसकी क्या हो, यूटिलिटी हो. और यूटिलिटी किस चीज़ में हो? तो यूटिलिटी इसमें हो कि वो ये कर सके, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू दी समथिंग लाइक दिस, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द पीपल. ये मॉडर्निटी का एक फॉर्मूला बन जाएगा. आज भी कोई चीज़ प्रोग्रेसिव है या नहीं हम लोग इसी से तय करते हैं. तब स्टेट हो, इंडिविजुअल हो, सोसाइटी हो, हर लोग, रिलीजन हो, मॉरलिटी हो, एक ही चीज़ की कोशिश करेंगे और वो चीज़ क्या होगी, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द पीपल. आदमी हेडोनिस्ट है और अपने कंफर्ट को, प्लेजर को बढ़ाना चाहता है और उस सिचुएशन में वो खुद से कंट्रीब्यूट कर सकता है, स्टेट उसको हेल्प कर सकता है, सोसाइटी उसको माहौल ऐसा दे सकती है जिसमें कि वो ग्रेटर गुड इंश्योर कर सके. इनका एक ये भी मानना था कि स्टेट को जो रोल प्ले करना होगा वो कानून बना के करना होगा और स्टेट कानून बनाकर सोशल, पॉजिटिव सोशल चेंजेस ला सकता है. तो रिफॉर्म्स बाय लॉ ये भी इनका मैक्सिम था. ये वो लोग थे एंड दे वांटेड टू यूज इंडिया एज अ लेबोरेटरी. उसी तरह से तीसरी जो लोग थे इनको कहते हैं इवेंजेलिस्ट्स और इवेंजेलिकल्स, और देयर इज समथिंग दैट इज कॉल्ड इवेंजेलिकलिज्म. इवेंजेलिस्ट्स, और वी कैन ऑल्सो से इवेंजेलिकल्स. गूगल करके देखना बोथ वर्ड्स सही हैं या कोई एक ही सही है या दोनों ही गलत हैं. इवेंजेलिकल्स, इज देयर एनी वर्ड लाइक इवेंजेलिकलिज्म? दोनों स्पेलिंग सही है. इवेंजेलिकल्स और इवेंजलिस्ट्स दोनों सही है. चलिए, ये वो लोग थे जिनको लगता था कि दे आर मोर सिविलाइज्ड, देयर रिलीजन इज मोर साइंटिफिक, एंड सो दे वांटेड एज पार्ट ऑफ देयर परसिव्ड बर्डन ऑफ सिविलाइजेशन, और व्हाट इज ऑल्सो नोन एज वाइट्समैन बर्डन, दे वांटेड टू कन्वर्ट पीपल to Christianity. So they started putting pressure for this, isn't it? And then we have people who are known as liberals. Liberalism, we have seen in world history by this time had become a potent historical force. We are talking about the first half of the
19th, rather middle of the 19th century. So by the middle of the 19th century, we have had French Revolution, European revolutions. Do you remember? Flight of Metternich, etc., etc. So liberals and their position cannot be ignored. So these were the people who simply wanted some rights. अब ये ना इंडिया में कुछ चाहते थे. These people wanted something in India. ठीक है ना? इनके अपने अपने मकसद थे. जैसे इनमें से सभी के सभी एक चीज चाहते थे जिसको कहते हैं मॉडर्न एजुकेशन. फ्री ट्रेडर्स के हिसाब से लोगों का टेस्ट बदलेगा, मार्केट एक्सपेंड होगा, आप समझ सकते हैं. यूटिलिटेरियंस भी चाहते थे कि दैट विल इंश्योर ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल. इवेंजलिस्ट को भी लगता था कि एजुकेशन चाहिए, इसलिए कि एजुकेटेड इंडियंस वुड बी मोर लाइकली टू एक्सेप्ट क्रिश्चियनिटी. लिबरल्स को भी लगता था कि लोगों को अपने राइट्स के बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए. सो दिस न्यू सोशियो आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स emerging in England as a result of the material and ideological changes associated with the Industrial Revolution in the second and third stages of colonialism. ठीक है, they wanted certain initiatives to be taken in India. For example, education. जैसे ये चाहते थे कि इंडिया में क्या डेवलप हो, कम्युनिकेशन, रेलवेज वगैरह, क्योंकि बिना इनके डेवलपमेंट के आप मार्केट एक्सपेंड नहीं कर सकते. ठीक है. ये क्या चाहते थे, तो ये चाहते थे नए कानून बनाना, लेजिस्लेटिव इंटरवेंशंस. ये क्या चाहते थे, तो इंडिया में बिजनेस करना है तो कानून तो लॉ तो क्लियर होना चाहिए. वो चाहते थे कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉज. कुछ इस तरह की चीज़ें ये चाहते थे. वी आर नॉट गोइंग टू मेक एन एग्जॉस्टिव लिस्ट हियर. वो रेवेन्यू रिफॉर्म्स भी चाहते थे. जैसे रेवेन्यू रिफॉर्म्स वो इसलिए चाहते थे कि परमानेंट सेटलमेंट में सिर्फ जमींदारों को फ़ायदा था, रेतवारी सेटलमेंट में किसानों को फ़ायदा था. अभी सिचुएशन को दोनों सपोर्ट करेंगे. फ्री ट्रेडर्स इसलिए करेंगे कि अगर बहुत सारे ज़मींदारों के पास थोड़े से जमींदारों के पास बहुत सारा पैसा हो तो मार्केट लिमिटेड है, लेकिन अगर बहुत सारे किसानों के पास अगर थोड़ा थोड़ा भी पैसा हो तो मार्केट बड़ा मार्केट है. ये इकोनॉमी का लॉ कहता है. तो उनको भी था कि किसानों की परचेजिंग पावर को बढ़ाया जाए. ठीक है. उसी तरह से यूटिलिटेरियंस का सपना भी रेवेन्यू रिफॉर्म से पूरा होता, इसलिए कि अगर कुछ ही ज़मींदारों को प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट दिया गया है और उनके पास एसेट है तो सिर्फ उन्हीं का भला होगा, लेकिन अगर बहुत सारे किसानों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो. और रिलीजन में एक मकसद वेलफेयर का हमेशा होता ही है. तो क्रिश्चियन मिशनरीज को भी लगता था कि अगर रेवेन्यू रिफॉर्म्स होंगे, पीजेंट्स को अगर राइट्स दिए जाते हैं प्रॉपर्टी के राइट्स, तो उनका भला होगा. क्लियर. तो ये सब लोग चाहते थे कुछ काम इंडिया में. अब एक बात बताओ, अगर ये सारे काम इंडिया में करना है तो उसके लिए कौन सा रूल हमारे लिए अच्छा होगा? डायरेक्ट ज़्यादा सूटेबल था या इनडायरेक्ट ज़्यादा सूटेबल था? बात समझ गया ना. और यही वजह थी कि 1830s एंड 40s एंड 50s में ब्रिटिश पॉलिसी किसकी तरफ जा रही थी? डायरेक्ट रूल की तरफ जा रही थी. ऑफ कोर्स इट हैड समथिंग टू डू विथ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड एज पर्सनल चॉइसेस. डलहौजी की खासियत ये थी कि डलहौजी एक ऐसा बंदा था जिसकी ज़रूरत अभी थी.